Good morning, everyone. I am Amika Sharma, guest lecturer at Government VYT PG Autonomous College, Chhattisgarh. Today, I am going to discuss the topic random amplification of polymorphic DNA. It is a virtual lab class, and this topic is under the syllabus of MSc second semester. So, what is the aim of this practical? Our aim is to understand the concept of DNA fingerprinting by random amplification of polymorphic DNA in context of bacterial strain identification. So what is RAPD? RAPD is a short form of random amplification of polymorphic DNA. We have to remember this short form because we are going to use this term many times in this slide. And next one is requirement. For conducting this practical, we need some specific chemical ingredients for completion of this aim. Our basic requirements are 10x AC buffer, dinucleotide triphosphate mixture, Taq polymerase enzyme, random primers, molecular biology grade water, two different strain of E. coli. One is E. coli K12, second one is E. coli 0103. Two strain of Bacillus species. One is Bacillus cereus and second one is Bacillus subtilis. Test genomic DNA, which we are going to use as test model for this practical. A DNA ladder of 100 base pair. Ultra resolution agarose for electrophoresis. 50x TAE buffer. 6x gel loading buffer. Polypropylene tubes for PCR and mineral oil. Besides that, we also use some glassware reagents and equipment for conducting this practical. Glasswares are measuring cylinder and beaker. Reagents is ethidium bromide for detection of DNA fragment in the electrophoresis gel. And equipments are thermocycler for PCR, electrophoresis apparatus for electrophoresis, UV transfer illuminator for visualization of DNA into gel, vortex mixture, micropipette tip, adhesive taps, hot plate, crust ice, and gloves. Generally, in basic laboratory, when we conduct this practical, we use a mini prep kit, which is provided by a private companies, and they provide all the chemical ingredient in this mini prep kit. Other than that, the glassware, reagent, and equipment we have to use by our laboratories. So before starting the practical aspect of RAPD, we have to first know what is RAPD and why we are going to use this analysis method for bacterial identification. So random amplified polymorphic DNA is a method of producing a biochemical fingerprint of a particular species. Relationship between the species may be determined by comparing their unique fingerprint information. RAPD-PCR is means of creating a biochemical fingerprint of an organism and is used to analyze the genetic diversity of an individual by using random primers. In this method, random primer sequences are added each to an individual sample of DNA, which is then subjected to PCR. The resulting amplified DNA markers are random polymorphic segments with varying band size, which can be analyzed after performing gel electrophoresis. So, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए मेथड जो है वो बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट जनरेट करता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का। इस बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट से हम स्पीसीज टू स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन। आरएपीडी पीसीआर हमको क्या करके दे रहा है? आरएपीडी पीसीआर हमको ये बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट जनरेट करके दे रहा है, जिसके थ्रू हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज कर सकते हैं और किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग रैंडम प्राइमर्स। अब रैंडम प्राइमर्स क्या है? रैंडम प्राइमर्स जो हैं, प्राइमर्स हम किसे कहते हैं? प्राइमर्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि 7 to 10 और 15
डीएनए सीक्वेंस होता है, पर ये सिर्फ 7 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसे हम रैंडम प्राइमर्स क्यों बोल रहे हैं? रैंडम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस प्राइमर का जो प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, हमने इसको किसी स्पेसिफिक जीन के लिए कोड नहीं किया है, ये रैंडम है। मतलब ये किसी भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद किसी भी रैंडम प्लेस में अगर वो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो जाके उससे अटैच हो जाएगा और वहां पे एम्प्लीफिकेशन को इनिशिएट करेगा। तो आप इस प्राइमर को जिस तरह से हम डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर यूज करते हैं उस प्राइमर की तरह आप यूज समझ सकते हैं, और इस प्राइमर को हम पीसीआर में यूज करने वाले हैं। तो ये प्राइमर जो हम बना रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक जीन के लिए नहीं है, हमने रेंडमली बना लिया है। और अगर ये रेंडम प्राइमर जाके उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होता है तो हमको वहां पे पीसीआर प्रोडक्ट मिलते हैं। जो रिजल्ट हमको एम्पलीफाइड डीएनए मार्कर के थ्रू मिलता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर बेस्ड टेक्निक है, इसलिए हर इंडिविजुअल में जो डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे हमको पीसीआर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। और ये जो वेरी कंडीशन है जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरह से मॉलिक्यूलर बेस पे अलग है, इसके थ्रू ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जनरेट करते हैं। और आफ्टर एनालाइजिंग दिस पीसीआर प्रोडक्ट हम ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म से कितना सिमिलर है या कितना डिसिमिलर है, या वो वही ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तो इस मेथड से हम बैक्टीरियल स्ट्रेन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। So what is the principle? Our principle is genetic analysis of organism at the molecular level is a very important and widely practiced scientific tool. Several techniques have been developed to analyze each individual or type of individual in a specific in species distinctly. One important PCR-based genetic analysis is RAPD. RAPD used a small 10 nucleotide length non-specific primer to amplify seemingly random region of genomic DNA, which we have discussed before in previous slides. If primers with arbitrary sequence, means random sequence of primers, are used for PCR amplification, DNA segment to be amplified will be selected at random, which will be thus provide a truly random sample of DNA markers. In RAPD, no knowledge of DNA sequence of the target gene is required, as the primer will be bind somewhere in the sequence, but it is not certain exactly where. The principle is that the single shot oligonucleotide primer, which binds to many different loci, is used to amplify random sequence from a complex DNA template. So जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरएपीडी क्यों इजी और स्पेसिफिक प्राइमर है, क्योंकि हमको पर्टिकुलर हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक प्राइमर यूज नहीं कर रहे हैं, हम रैंडम प्राइमर यूज कर रहे हैं। अगर हमको हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में नहीं भी पता है, उसके स्पेसिफिक जीन्स के बारे में नहीं पता है, तो भी हम ये एनालिसिस मेथड, इस मार्कर को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने रैंडम प्राइमर यूज किया है। तो ये जो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं वो जाके रैंडमली डीएनए कॉम्प्लेक्स के सीक्वेंस से बाइंड करेंगे और फिर वहां पे पीसीआर प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। दिस मीन दैट द एम्प्लीफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय पीसीआर डिपेंड on the length and size of both primer and the target genome. The assumption is made that a given DNA sequence will occur in the genome on opposite DNA strands in opposite orientation within a distance that is readily amplified by PCR. So हम ये मान रहे हैं कि जो हमने एम्प्लीफिकेशन किया है पीसीआर में इस रैंडम प्राइमर्स के थ्रू, उनका लेंथ डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए का साइज कितना है, उस टेम्पलेट का साइज कितना है और प्राइमर का साइज कितना है। और इसके बेस पे हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस उस प्राइमर ने एक टेम्पलेट के थ्रू सिंथेसाइज किया है, इसका मतलब जो प्राइमर
का सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं उस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में प्रेजेंट है, अपोजिट साइड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, इसलिए ही वो वहां पे हाइब्रिडाइज हुआ है और हमको वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी पीसीआर के थ्रू मिल जाएगा। और जब हम अनिलिंग करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कंबाइन होंगे। इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा टेस्ट टेम्पलेट डीएनए है जिसका हम टेस्टिफाई कर रहे हैं, ये बैक्टीरियल डीएनए है। जब हम आरईपीडी करते हैं तो सिंपल पीसीआर सीक्वेंस ही है कि हमने डीएनए को थर्मोसाइक्लर में ऐड किया और डीएनटीपीज दिए, प्राइमर्स दिए, मैग्नीशियम आयंस दिए और टैग पॉलीमरेज दिया। अब क्या होगा, पीसीआर में सबसे फर्स्ट क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होंगे, ये जो पहला स्ट्रैंड है और जो ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे वो स्टेप विजुअलाइजेशन नहीं है, दोनों अलग हो जाएंगे। और जब हम उसमें प्राइमर ऐड करेंगे तो जो प्राइमर्स है वो रेंडमली कोई इस टेम्पलेट डीएनए में या तो किस इस सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए में जाके बाइंड होगा, जिस तरह से 1 2 3 4 ये चारों प्राइमर बाइंड हुए हैं। पर अभी ये स्टैंड अलग है और ये स्टैंड अलग है क्योंकि डिनेचुरेशन की प्रोसेस हो गई है और अनिलिंग हो गया है प्राइमर का। अब जब हम एम्पलीफिकेशन कराते हैं तो इस स्ट्रैंड की एम्पलीफिकेशन 1 और 3 प्राइमर करेंगे और इस स्ट्रैंड की एम्पलीफिकेशन 2 और 4 प्राइमर करेंगे। ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन सिर्फ उन्हीं सीक्वेंस का होगा जहां जहां प्राइमर अटैच हुए हैं, तो वहीं से टैग पॉलीमरेज उसका एम्पलीफिकेशन करेगा। आफ्टर एम्पलीफिकेशन हम क्या करते हैं, अनिलिंग की प्रोसेस कराते हैं। अनिलिंग की प्रोसेस में ये होगा कि इस प्राइमर 1 और डीएनए टेम्पलेट के थ्रू जो पीसीआर प्रोडक्ट बना और इस प्राइमर और डीएनए टेम्पलेट के थ्रू जो पीसीआर प्रोडक्ट बना वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, हमने इसके लिए एक प्राइमर दिया, इसके लिए एक प्राइमर दिया, तो अब जो स्ट्रैंड बनेंगे वो दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सेम एज 3 और 4 के साथ होगा। जब हम अनिलिंग का प्रोसेस कराएंगे थ्रू दी पीसीआर तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में अनिल होंगे और अनिल होने के बाद इन दोनों के पीसीआर प्रोडक्ट से हमको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोडक्ट मिलेगा और इन दोनों के प्रोडक्ट से हमको दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ आफ्टर अनिलिंग प्रोसेस जब हम थर्मोसाइक्लर बंद करते हैं और उस सैंपल डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रन कराते हैं तो हमको दो बैंड्स मिलेंगे, एक प्राइमर 1 और प्राइमर 2 के रिजल्ट से जो पीसीआर प्रोडक्ट बने थे और उनकी अनिलिंग जो हुई वो, और दूसरी जो प्राइमर 3 और 4 के पीसीआर प्रोडक्ट बने थे और उनकी अनिलिंग से जो प्रोडक्ट बना वो। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बी जो है उसका लेंथ कम है तो वो जेल में आगे की तरफ रन करेगा और जो प्रोडक्ट ए है उसका साइज ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस रन करेगा। तो हमको दो बैंड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो सेम ये जो स्टेप है वो इस लास्ट पैराग्राफ में समझाया गया। As with most PCR technique, REPD requires a little material for analysis and is relatively insensitive to template integrity. Slightly modification to the basic PCR method are made for REPD. First, the primer are primer 4, approximately 10 base in the length compared to 70 to 25 base primer length of normal PCR. Because PCR are short, primers are short, the annealing temperature is reduced to less than 40 degrees Celsius. In RAPD analysis for PCR to occur, first a primer must anneal in a particular orientation such that they point toward each other and they must anneal within a reasonable distance of one another. Successfully primer pair produce different bending profile of PCR products between individual strain or species when analyzed by gel electrophoresis. तो जो पीसीआर मेथड हम यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग दी आरएपीडी एनालिसिस, हम उस पीसीआर मेथड को जनरलाइज जो पीसीआर प्रोटोकॉल है उससे थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकें आरएपीडी के बेसिस पे। तो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम शॉर्ट प्राइमर्स यूज करते हैं जो कि 10 बेस पे लेंथ के होते हैं, जबकि इन जनरल पीसीआर जो प्राइमर्स हम यूज करते हैं वो 17 to 23 के रेंज पे वेरी करता है।
शॉर्ट प्राइमर यूज करने का मेन पर्पस है कि हमारा जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वो इजिली अनील हो जाता है। नेक्स्ट वन, ये कि जो प्राइमर्स की अनीलिंग हम करा रहे हैं वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मीन्स अगर प्राइमर 1 इस ओरिएंटेशन में है तो प्राइमर 2 इस ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अगर दोनों प्राइमर एक ही ओरिएंटेशन में हो गए तो दोनों के प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, दोनों के लेंथ वेरी करेंगे सेम एज 3 और 4 के साथ। दे मस्ट अनिल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस, मीन्स अगर ये प्राइमर यहाँ अटैच है और सेकेंड प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया तो इसके जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसका लेंथ बहुत ही कम होगा, और क्योंकि लेंथ कम होगा तो अनिलिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उस प्रोडक्ट की लेंथ भी बहुत कम होगी और आपको वो विजुअलाइज नहीं होंगे आपके जेल में। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर की जो प्राइमर्स है जिसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनके अनिलिंग का पोजीशन जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस में होना चाहिए। Now we have come to the procedure. So first is to prepare a master mixture for PCR, क्योंकि RAPD जो एनालिसिस कर रहे हैं वो PCR बेस्ड ही है, बस हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है ताकि हम RAPD एनालिसिस कर सकें। तो हमको इसके लिए PCR मास्टर मिक्सचर बनाना पड़ेगा। To prepare a PCR master mixture by adding the following ingredient: molecular biology grade water 75 ml, 10x assay buffer 10 ml, 2.5 millimolar DNTP 7.5 ml, random primers 5 ml, random primer second 2.5 ml। ये पूरे मास्टर मिक्सचर को हम एपेंडॉफ ट्यूब्स में बनाएंगे और इस ट्यूब को हम 1 से 2 सेकेंड के लिए कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड किया है वो अच्छी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाए। ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस हमको ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो प्रोसेस है वो आइस में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो DNTPs यूज किया है और जो प्राइमर्स यूज किए हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो सकते हैं या हाई टेम्परेचर में वो डिग्रेडेट हो सकते हैं। तो हम ये जो प्रोसीजर है वो आइस के ऊपर कर रहे हैं। Allocate 20 ml of above PCR mixture to each of the 5 different PCR tubes and label them as 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये जो मास्टर मिक्सचर बनाया है, मास्टर मिक्सचर बनाने से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि हम इंडिविजुअल अलग अलग एपेंडॉफ में अगर अलग अलग टेस्ट के लिए बहुत कम कम अमाउंट में जब इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं, हमारे माइक्रोपिपेटिंग एरर हो सकता है। तो हम एक मास्टर मिक्सचर बनाते हैं जिसमें हमारा कलेक्टिवली जो अमाउंट है इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट का वो बढ़ जाता है और पाइपेटिंग भी इजी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले एक मास्टर मिक्सचर बनाया और इस मास्टर मिक्सचर को फिर 5 अलग अलग PCR ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और उसको लेबल कर लिया 1, 2, 3, 4, 5। Add 1 ml genomic DNA of E. coli K12, E. coli 0103, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and test। तो हमने जो 1, 2, 3, 4, 5 ये लेबल किया था, इस लेबल्स में हमने एक में E. coli DNA डाला जो कि E. coli K12 था, दूसरे में E. coli 0103 स्ट्रेन डाला, थर्ड वन में Bacillus cereus डाला, फोर्थ वन में Bacillus subtilis एंड लास्ट वन में टेस्ट DNA डाला जो हमको एज अ टेस्ट मॉडल दिया गया है। Genomic DNA to the test 1, 2, 3, 4, 5 respectively. Mix the content gently. Add 25 ml of mineral oil to the PCR tube to avoid the evaporation of the content. हम मिनरल ऑयल क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अब जो मिक्सचर है वो इवोपरेट हो सकता है जब हम उसको थर्मोसाइक्लर में डालेंगे और टेम्परेचर वेरी करेगा ड्यूरिंग डीनेचरेशन प्रोसेस, अनिलिंग प्रोसेस। तो इसलिए हम उसको इवोपरेट नहीं करना चाहते, इस कारण से हमने उसमें मिनरल ऑयल ऐड किया है ताकि वो उसका इवोपरेशन ना हो पाए। It is not essential to add mineral oil if the thermocycler is equipped with the heating lid. अगर आपके थर्मोसाइक्लर में हीटिंग लिड पहले से है, आपके पास ऐसा मॉडल प्रेजेंट है, तो आपको मिनरल ऑयल ऐड करना एसेंशियल नहीं है। Place the tube in a thermocycler, block and set the program to get a DNA amplification। तो आपको थर्मोसाइक्लर में
पूरा प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमने जो सेटअप किया है पीसीआर में वो ये है कि इनिशियल जो डीनेचुरेशन होगा वो 95 डिग्री सेल्सियस पर होगा 3 मिनट्स के लिए। फिर आफ्टर 3 मिनट 1 मिनट के लिए 95 डिग्री सेल्सियस में डीनेचुरेशन के लिए हम और रखेंगे, मीन्स पूरा डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है 4 मिनट का है। फिर अनिलिंग प्रोसेस जो है 45 डिग्री सेल्सियस पे होगा फॉर 1 मिनट, एक्सटेंशन जो है 72 डिग्री सेल्सियस पे होगा 2 मिनट एंड फाइनल एक्सटेंशन जो है 72 डिग्री फॉर 5 मिनट। उसके बाद हम उसको कूलिंग के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देंगे फॉर 1 आवर। और जो ये पूरा सेट हमने किया है फॉर 1 साइकिल, ये पूरा सेट टिल इनिशियल डिनेचुरेशन टू फाइनल एक्सटेंशन, ये स्टेप रिपीट होगा 45 साइकिल तक और कूलिंग स्टेप हम 45 साइकिल के बाद करेंगे और फिर हम अपना हमारा पीसीआर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनॉकुलेट लोड करेंगे। तो फॉलोइंग पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एड 2 ml of 6x gel loading buffer to each of the PCR tube and mix thoroughly। तो आफ्टर कूलिंग हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ट्यूब्स में 6x जेल लोडिंग बफर ऐड करना है 2 ml हर इंडिविजुअल ट्यूब्स में। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। जेल लोडिंग बफर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले ऐड करना जरूरी है ताकि हम जब वेल्स में उस पीसीआर प्रोडक्ट को लोड करें तो वो उसको स्टैक होने में हेल्प करेगा। जो वेल्स बने हुए हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में वो उसमें पीसीआर प्रोडक्ट को सेटल डाउन होने में हेल्प करेगा। लेट स्टैंड फॉर सम टाइम फॉर दी 2 लेयर्स ऑफ सेपरेशन। ड्यूरिंग दी प्रोसीजर जब हमने ये 45 साइकिल किया पीसीआर में, इसी के साथ साथ हम साइड बाय साइड हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस वी हैव टू प्रिपेयर 1x TAE बफर। 1x TAE बफर बनाने के लिए जो 50x TAE बफर लिया गया है उसी में से हम उसको डाइल्यूट करेंगे। टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 1x TAE बफर एड 10 ml ऑफ 50x TAE बफर टू 490 ml ऑफ स्टाइल वाटर। तो हमने 50x TAE बफर का 10 ml लिया और उसको 490 ml स्टाइल डिस्टिल वाटर में ऐड कर दिया तो हमारा 1x TAE बफर प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एग्रोस जेल। टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 2% agarose gel, add 1 gram of agarose to 50 ml of 1x TAE buffer in a glass beaker or flask. Heat the mixture on a hot plate or microwave by stirring this glass beaker flask occasionally until agarose dissolve completely. Allow the solution to cool down to about 55 to 60 degrees Celsius. Add 0.5 ml ethidium bromide. Mix well and pour the gel solution in the gel tray. Allow the gel to solidify for about 30 minutes at room temperature. तो जो ये प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ एग्रोस जेल, अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर किया है तो आपको पता होगा कि ये बहुत इजी प्रोसीजर है। आपको एग्रोस को TAE बफर में डिसॉल्व करना होता है, पर ये डिसॉल्वेशन जो है वो हीट प्रोसीजर के थ्रू होती है। तो इसलिए हम जो 50 ml TAE ले रहे हैं उसमें एग्रोस ऐड करते हैं और उसको हॉट प्लेट या माइक्रोवेव में रख देते हैं और बाय हीटिंग प्रोसेस जो एग्रोस है वो 1x TAE बफर में मिक्स हो जाता है। आफ्टर मिक्सिंग हम उसको कूल डाउन करते हैं 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस जिसमें वो पोरिंग कंडीशन में हो और उसको फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में पोर कर दिया जाता है। यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे 1% एग्रोस जेल यूज नहीं किया है, हमने 2% एग्रोस जेल यूज किया है। जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं फॉर डीएनए विजुअलाइजेशन या जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन और सेपरेशन के लिए तो हम 1x एग्रोस जेल यूज करते हैं, पर यहाँ पे हम पीसीआर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जीनोमिक डीएनए का साइज बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए उसके लिए जो पोर साइज है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल का वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम उसमें एग्रोस जेल है वो कम ऐड करते हैं और 1% ही ऐड करते हैं ताकि जो जेल प्रिपेयर हो उसमें पोर साइज बड़े बने। पर यहाँ पे हम जो जेल रन करने वाले हैं उसमें हम पीसीआर प्रोडक्ट्स को रन करने वाले हैं और जिनका
साइज जो है वो कंपेयर टू जीनोमिक डीएनए बहुत कम है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमको एग्रोज जेल का पोर साइज कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज जो है वो 2% कर दिया है। अब जो जेल बनेगा उसमें पोर साइज जो है वो बहुत छोटे होंगे और उस पोर साइज में हम इजिली शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमको ध्यान देनी है कि हमने उसमें 0.5 ml इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया। इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करने का पर्पस ये है कि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो हमको विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है जब हम यूवी लाइट पे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल को रखते हैं या उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जाके चिलेट हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के कारण जब हम उसको उस इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल को ट्रांस एलिमिनेटर के ऊपर रखते हैं और यूवी लाइट प्रोवाइड करते हैं बैक साइड, तो ये ईटीबीआर यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्लोरेशन प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर का फ्लोरेशन प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ईटीबीआर डीएनए सिलेक्शन कर रहा है तो हम ये उस चीज को इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जहां जहां पे ईटीबीआर का फ्लोरेशन दे रहा है या फ्लोरेशन विजुअलाइज हो रहा है वहां वहां पे डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट हैं जेल। Now next one is loading of the DNA sample. Load 5 ml of ready to use DNA ladder into the first and last well. Load 50 ml of PCR sample. So during the loading procedure हमने 5 ml ready to use DNA ladder यूज किया है शुरू और लास्ट वेल में, और जो पीसीआर प्रोडक्ट है उनका 50 ml अमाउंट लिया है और उसको डाई के साथ ऐड किया है। डाई मीन्स हमने उसमें ट्रैकिंग डाई ऐड किया है, मीन्स हम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम उसमें पावर के थ्रू उसको रन कराते हैं तो हम ये विजुलाइज कर सके कि हमारा जो पीसीआर प्रोडक्ट है वो कितना दूर तक रन कर चुका है जेल में, ताकि हम ये उस पर्टिकुलर प्रोसेस को विजुअलाइजेशन कर सके, इसलिए हम उसमें ट्रैकिंग डाई ऐड करते हैं। Molecular biology grade water is recommended for this procedure because जो हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं उसमें इन्वायरमेंटल न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड रहने के चांसेस होते हैं जो कि कंटामिनेशन कर सकते हैं, इसलिए आप बायोलॉजिकल ग्रेड वाटर यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डीएनए आपको क्लियर और प्रिसाइज शार्प बेंड्स मिलेंगे। Electrophoresis contain the power cord to the electrophoretic power supply according to the convention. Red anode and black anode, red anode and black cathode. Electrophoresis at 100 to 120 volt and 90 millivolt until dye markers have migrated an appropriate distance depending on the size of DNA to be visualized. So electrophoresis के लिए हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर को पावर कॉर्ड से अटैच करना पड़ेगा, वायर अटैच करने पड़ेंगे रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक। रेड जो है वो एनोड को डिनोट कर रहा है, ब्लैक कैथोड को डिनोट कर रहा है। पावर सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो 100 टू 120 वोल्ट होना चाहिए, और जो डिस्टेंस माइग्रेशन हो रहा है पीसीआर प्रोडक्ट के थ्रू उसको हम ट्रैक कर रहे हैं बाय दी ट्रैकिंग डाई। सो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जब रन हो जाता है हमको जेल मिल जाता है, तो हमको अब रिजल्ट ऑब्जर्व करना है और उस रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल हमको मिलता है हम उसको ट्रांस एलिमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, और ट्रांस एलिमिनेटर में इथिडियम ब्रोमाइड के थ्रू हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो हियर इज द बैंड व्हिच इज शोड इन दिस पिक्चर। तो जो प्रोटोकॉल हमने यूज किया है उस बेस पे हमने ये फिक्स किया था कि जो फर्स्ट लेन है वो फर्स्ट लेन हमारा डीएनए लैडर है जो कि 100 बेस पेयर का है। सेकेंड लेन जो है वो इकोलाई K12 स्ट्रैंड का है। थर्ड लेन इज इकोलाई 10103। फोर्थ वन इज Bacillus cereus एंड लास्ट वन इज Bacillus subtilis। So this is our test DNA, जिसमें हम लेडर डीएनए रखा है, और हर जो डीएनए है उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले हैं, क्योंकि ये
लेडर डीएनए, इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। इसके कंपैरिजन में हम जब विजुलाइज करते हैं इन चारों लाइन को, तो हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इन फर्स्ट लाइन वी हैव लोडेड द इक्वलाइज K12। जो बैंड्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे स्लाइटली लाइट बैंड दिख रहा है और यहाँ पे दो बैंड दिख रहे हैं और नीचे दो बैंड दिख रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाजू वाली लेन से जो कि इक्वलाई 0103 का है, तो क्योंकि ये दोनों ही लेन में जो ऑर्गेनिज्म हमने इनोकुलेट किया था वो इकोलाई से है पर स्ट्रेन अलग है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको सिमिलैरिटी दिख रही है इन दोनों बैंड्स में और स्लाइटली इस बैंड के पास भी, पर स्लाइट पॉलीमॉर्फिज्म या वेरिएशन हमको दिख रहा है इन दी एंड्स। मतलब यहाँ पे कुछ छोटे फ्रेगमेंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट भी बने हैं जो कि लेडर के साथ हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक ही पीसीआर प्रोडक्ट बना है जो कि इन दोनों की साइज से ज्यादा है। सो इसके बेसिस पे हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन में जो हमने स्पीसीज ऑफ डीएनए डाले थे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं इन कंपेयर टू दिस टू लेन स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हमको ज्यादा दिख रहा है। पर ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली चेंज हो रहा है, और ये हम देख भी सकते हैं क्योंकि हमको पता है हमने उन दोनों लाइन में कौन से ऑर्गेनिज्म ऐड किए हैं। तो ये दोनों इक्वलाई हैं पर दोनों के स्ट्रैंड अलग हैं, इसलिए हमको स्लाइटली वेरिएशन दिख रहा है। ये दोनों ही लेन जो है इन दोनों बाकी बच्चे दो लेन से पूरी तरह से डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी दो बैंड्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। नाउ बात करते हैं इन लास्ट दो बैंड के बारे में जो कि है बैसिलस सीरस और बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सीरस और बैसिलस सबटिलिस में सिमिलरिटी इस बैंड में है पर बाकी जगह पे डिसिमिलरिटी दिख रही है। तो स्लाइटली सिमिलर है तो मे बी सेम स्पीसीज हो सकता है, पर उसी स्पीसीज का सेम स्ट्रैंड नहीं है। मीन्स बैसिलस सीरस का ही दूसरा स्ट्रैंड नहीं है बैसिलस सबटिलिस। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, स्ट्रेन अलग है, इसलिए यहाँ पे इन कंपेयर टू दिस टू लेन हमें वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है। तो हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि फर्स्ट टू लेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर स्पीसीज हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेन डिफरेंट है। लास्ट टू जो लेन्स हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम स्पीसीज हो सकते हैं पर सेम स्ट्रेन नहीं है और सेम ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। मतलब बैसिलस सीरस और बैसिलस सबटिलिस दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं विद इन दी सेम स्पीसीज। So what are the our interpretation? The RAPD pattern, for example, number and size of amplified PCR product vary among different bacterial strain, जो कि हमने देख लिया. This happened due to the variation in their genomic DNA sequence and annealing site of the random primer. By doing this experiment, one can study the RAPD fingerprints for differentiating bacteria at genus and species level. The RAPD pattern of E. coli and Bacillus shows significantly difference, but RAPD pattern within the species of same genus, E. coli K12, E. coli 10103 shows less difference. From all the RAPD pattern, one can check with which reference sample the test sample matches and thus identify the bacterial strain. So, जो मेन हमारा इंटरप्रिटेशन हुआ ये कि जो RAPD पैटर्न है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिखाता है कि इक्वलाई और बैसिलस किस तरह से दोनों अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। पर जब जीनस की बात होती है जहाँ पे हमने इक्वलाई 0103 और इक्वलाई K12 की बात की जहाँ जीनस सेम था पर स्ट्रेन डिफरेंट है, तो हमको लेस डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा था। पर जब स्पीसीज वेरिएशन होता है तो हमको लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से RAPD पैटर्न के बेसिस पे हम एक रेफरेंस
टेस्ट मॉडल के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर पहले से ही किसी इकोलाई K12 स्ट्रेन का पैटर्न आरएपीडी पैटर्न प्रेजेंट है तो आप उसको मैच कर सकते हो आपके आरएपीडी पैटर्न से, और अगर वो पूरी तरह से सिमिलरिटी है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई K12 है या इकोलाई 0103 है या बैसिलस सीरस है। So this is the all about RAPD. If you have any query, please comment on the comment box. Thank you for listening me.